परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं जो उसने हमें दिया है। Once again, we are here to meditate upon the Word of God. और एक बार फिर आज है परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने के लिए। And God is there to help us because He is always present amongst us. और परमेश्वर हमारी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। Because He has promised that wherever two or more are gathered in my name, I am always present amidst them. क्योंकि उसने हमसे ये वायदा किया है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। These days we have been meditating upon These days we have been meditating upon the Song of Solomon. इन दिनों में हम श्रेष्ठ गीत की किताब पर अध्ययन कर रहे हैं। This is a very special book in the Bible. और ये बहुत विशेष पुस्तक है बाइबल की। In the olden times, the Jews cherished this book. और पुराने समय में यहूदी जो थे वो इस किताब को बहुत मानते थे। And whenever they read this book, they never they honored it like anything because everybody stood when this book was read. और पुराने समय में वो इस किताब का ऐसा आदर करते थे क्योंकि हर एक जन खड़ा हो जाता था जब ये किताब पढ़ी जाती थी तब। In the Old Testament, whatever word we get is related to the law of Moses and the word given to Moses. पुराने नियम में हम जो भी बातें सीखते हैं वो मूसा को जो व्यवस्थाएं दी गई थी उसके बारे में हम देखते हैं। But in the New Testament, we see that the word fulfilled in Jesus Christ. और हम नए नियम में जो वचन देखते हैं उस वचन को देखते हैं जो यीशु मसीह में भरपूरी को पाता है। And now we can apply those words into our relationship with Jesus Christ. और हम उन वचनों को अपने यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं। So in the olden days, the song was related to God Jehovah and the Israel community. और पुराने नियम में जो गीत होते थे, जो अध्याय होते थे वचन के, वो इजरायली कम्युनिटी के लिए होते थे। And they felt that they were singing for their Jehovah and that Jehovah loves them. और वो ये मानते थे कि वो यहोवा के लिए गा रहे हैं और यहोवा को वो मानते थे। But as the time passed by and the times of Jesus came in, और जैसे जैसे समय बीतता गया और यीशु मसीह का समय आया, the same word which was given to Moses was not cancelled but fulfilled in Jesus Christ. और मूसा को जो वचन दिया गया था वो कैंसिल नहीं किया गया पर यीशु मसीह में उसको परिपूर्ण किया गया। That's why we see how the word of God comes in full bloom when we read it in the New Testament. हम परमेश्वर के वचन को उसी सामर्थ के साथ देखते हैं जब हम नए नियम को पढ़ते हैं। And so when we read this book, Song of Solomon, और जब हम इस श्रेष्ठ गीत की किताब को पढ़ते हैं, we read it as a love letter between God and or Jesus Christ and the church. हम इसको एक प्रेम पत्र के रूप में पढ़ते हैं यीशु और कलीसिया के बीच में। It is said by the theologians, थियोलॉजियंस कहते हैं, the new is in the old concealed. The New Testament is hidden in the Old Testament. जो नया है वो पुराने में छुपा हुआ है। And the Old Testament is revealed in the New Testament. और जो पुराना है वो नए में हमारे सामने रिवील किया गया है। So this word applies to this song also. और यही वचन इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के लिए भी लागू होता है। What was written in the olden times पुराने समय में जो लिखा गया is revealed in Jesus Christ. यीशु के समय में वो रिवील किया गया है। And exactly it applies to us because God calls Jesus as the bride and bridegroom and the church as the bride. और यही हम पर भी लागू होता है क्योंकि परमेश्वर यीशु को अपनी दुल्हन बनाता है और कलीसिया को भी अपनी दुल्हन बुलाता है। So Jesus is the bridegroom and the church is the bride. तो यीशु दुल्हन है और जो कलीसिया है वो दुल्हन है। And again it is written right from the book of Matthew, Gospel of Matthew to the book of Revelation. और मत्ती की किताब से लेकर प्रकाशन वाक्य की पुस्तक तक ये लिखा गया है। Jesus is called as the bridegroom कि यीशु दुल्हा है and church is called the bride. और जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है। Moreover, in the Old Testament also, पुराने नियम में भी when we read Psalms like Psalm 45, which we'll look into also, जब हम भजन संहिता उसके 45वें अध्याय को पढ़ते हैं, there also the writer writes about a love affair between God and His people. और वहाँ पे लेखक परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में प्रेम की बात करता है। And moreover, it's a prophetic word. और वो
which indicates towards Jesus Christ. जो यीशु की ओर दर्शाता है। So Psalm 45 is also very important psalm regarding this. और भजन संहिता उसका 45वां अध्याय बहुत जरूरी है। We have already seen into the first 8 verses of the Song of Solomon. हमने पहले 8 वचन को शेष गीत की पुस्तक से देखा है। And today we will meditate from 8 to 17. और आज हम देखेंगे 8 से लेकर 17वें वचन तक। Before we go into the verse 8, हम इससे पहले कि 8वें वचन में जाएं, verse 6 and 7 are very important. 6वां और 7वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है। Maybe 7. 7वां वचन, Tell me, you whom my soul loves, हे मेरे प्राण प्रिय मुझे बता, where you pasture your flock, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? where you make it lie down at noon. दोपहर को तू उन्हें कहाँ बैठाता है? For why should I be like one who veils herself मैं क्यों तेरी संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े and besides the flocks of your companions? घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? The question of the bride is, or the Shulamite, as I call her again and again. The question of the Shulamite is, उस दुल्हन का एक प्रश्न जो वो ये है now since I have a love for you and you have a love for me, कि जैसा मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है और तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, let us narrow down our search. हम अपने आप की खोज को कम कर दें। Why should I run all around looking for my lover? मैं क्यों इधर-उधर भटकती रहूं अपनी प्रेमी की खोज में? I should go right into the camp where you camp your sheep and where you stay. मैं वहां जाना चाहती हूं जहां पर आप अपनी भेड़ बकरियों को चराते हो और आप जहां रहते हो। See, the word of God tells us, देखो परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है God has narrowed our search into Jesus Christ. कि परमेश्वर ने हमारी खोज को कम कर दिया है यीशु मसीह में। Now we are not looking for a God. हम परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं। Now we don't put several deities before us and go for a look who is the right one. हम तरह-तरह के देवता या देवी नहीं लगाते और ढूंढते नहीं है कि इसमें हमारा परमेश्वर कौन सा है। God has narrowed our search क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जो सर्च है उसको कम कर दिया है। because He has pinpointed us and said that this is your camp, this is where your lover is. क्योंकि उसने हमें बताया है कि यह वो तंबू है जहाँ पर तुम्हारा प्रेम रहता है। There are several people in the church, बहुत सारे लोग हैं कलीसिया में, particularly the nominal ones. जो कि रोजमर्रा आते हैं। They think that Jesus is one of the deities. वो सोचते हैं कि यीशु भगवानों में से एक है। At times we get very happy when we see a picture of Jesus Christ or a cross हम somewhere. कभी-कभी बहुत खुश हो जाते हैं जब हम यीशु की तस्वीर को देखते हैं या यीशु के क्रूस को देखते हैं। When we go into some place and see many of the gods, the pictures of many of the gods over there and a cross or a picture of Jesus Christ, we get very happy. हम कभी यदि जाते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे देवी देवताओं के पिक्चर्स लगी हैं और यदि हम वहाँ पर क्रूस को देखते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। Is it right? क्या वो सही है? I'm not searching Jesus out of many of the gods, मैं यीशु को बहुत सारे भगवानों के बीच में नहीं ढूंढ रहा हूँ, but I have narrowed my search to Himself only, पर मैंने अपनी खोज को उसमें सीमित कर दिया है and now I concentrate on my lover only. और मैं सिर्फ उसकी ओर अपने ध्यान को लगाता हूँ। See, a young boy or young girl, till their marriage is not fixed, their engagement is not settled, एक जवान लड़का और या लड़की जब तक उनकी शादी तय नहीं हो जाती, जब तक उनकी एंगेजमेंट तय नहीं हो जाती, they look here and there. वो यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। Probably they like some young ones who are good looking, attractive, and maybe draw their attention. कभी-कभी ऐसा होता है कि वो ऐसे लोगों से अट्रैक्टेड होते हैं जो अच्छे दिखते हैं और ऐसा भी होता है कि वो उनकी ओर आकर्षित होते हैं। There are so many good and smart people in this world. इस दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट और अच्छे दिखने वाले लोग भी हैं। But once the Lord puts you in a pinpoint relationship with the person that He wants you to marry, परंतु जब परमेश्वर आपको एक व्यक्ति के ओर पिन पॉइंट करके बता देता है कि यही वो है जिससे तुम शादी करोगे, then you don't go helter-skelter searching for somebody for तो yourself. आप यहाँ वहाँ नहीं भटकते रहते हो कि मैं ढूंढूं किसी को। The very essence of this world is तो इस दुनिया का जो सार है वो इसमें है that we have found our lover, we have found the person whom we love and whom we have to concentrate upon. कि हमने उस प्रेमी को पा लिया है जिसकी ओर हमें अपने ध्यान को देना है।
See, the walk of Christian life doesn't start unless you know whom I have to concentrate on. परमेश्वर जो मसीह जीवन है वो वहां से नहीं शुरू होता कि जब तक हम ये ना जाने कि हमें किसकी ओर अपने ध्यान को लगाना है। Unless you know the Lord, you cannot concentrate upon Him. जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानते तब तक आप उसकी ओर अपने ध्यान को लगा ही नहीं सकते। There is a very important verse in the Bible which I often quote and which is John chapter 17 and verse 3. यूहन्ना 17 उसके 30वें वचन में हम काफी बार मैं उसे कोट भी करता हूँ। Eternal life is that I may know Him and His Son Jesus Christ whom He has sent on this world. अनंत जीवन वो है कि मैं उसे जानूं और उसके पुत्र यीशु को भी जानूं। What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? Just read it in Hindi or English, whatever you हिंदी want. या अंग्रेजी में मुझ मेरे लिए पढ़ते। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जो तूने भेजा है जाने। Where does the eternal life begin from? वो अनंत जीवन कहाँ से शुरू होता है? It's not in the search. वो खोज में नहीं है। Many people in this world, they say that we have searched every religion and we are real scholars, we know every detail of each religion. God says eternal life doesn't begin from there. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत सारे धर्मों के बारे में काफी कुछ जानकारी रखता हूँ, पर यीशु कहता है कि उसमें कोई धर्म नहीं है। During our conversation, when we speak to somebody and if he talks about so many religions that he knows about so many religions, we get impressed. जब हम किसी से बात करते हैं और वो बहुत सारे रिलीजन के बारे में हमसे यदि वो चर्चा करता है तो हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उससे। We feel that we do not know as much as he knows. हम ऐसा सोचते हैं कि हम वो नहीं जानते जितना ये व्यक्ति उस बात को जानता He है। must be more righteous than me. वो हम ऐसा सोचते हैं कि वो मुझसे ज्यादा धर्मी हो सकता है। But the Bible says eternal life begins only when we start knowing our own Lord Jesus Christ and the Father who sent the Son to us. पर वचन ये कहता है कि अनंत जीवन वहीं से शुरू होता है जब हम यीशु को जानते हैं और परमेश्वर के पुत्र यीशु को जानते हैं अपने जीवन में। This is why the lady says that, Shulamite says that, I insist on this, that unless the love comes out of your heart automatically, don't run after it. और इसलिए यहाँ पर वही कहती है कि जब तक प्रेम अपने आप से नहीं जागृत हो उसके पीछे ना भागे। Because half right effort is always risky. आधा जो हमारा एफर्ट होता है वो हमेशा हमें रिस्क में डालता है। You know how toddy is made? Toddy? ताड़ी कैसे बनाया जाता है? You know anybody? आप जानते हैं क्या? You put this thing, and you also make toddy out of the half ripened or half mature fruits that hang on the tree. और ताड़ी उससे भी बनाई जाती है जो आधा पका हुआ फल रहता है जो पेड़ में लगा हुआ होता है। Or if you take grapes and if you ferment it, और यदि आप अंगूर को ले लें और उसको थोड़ा सा सड़ा लें, then you get wine. तब आपको वाइन मिलती है। But if you don't ferment a grape, what do you get? तो यदि आप उस अंगूर को यदि सड़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? Grape juice. अंगूर का रस। Grape juice and wine are different things. अंगूर का रस और दाख मधु दोनों अलग-अलग चीजें हैं। What the Bible teaches us is that there are fresh things in us, very fresh things, natural fresh. है कि बहुत फ्रेश चीजें हमारी जिंदगियों में है और बहुत नेचुरल चीजें हमारी जिंदगियों में। Grape juice is natural fresh. और जो अंगूर का रस है वो नेचुरल होता है। Wine is not natural fresh, it is fermented. और जो दाख मधु है वो नेचुरल नहीं होता, वो सड़ाया हुआ होता है। Today many people in the church are taking fermented liquors and not the fresh wine that is in. और आज बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में जो सड़ी हुई दाख मधु को ले रहे हैं और वो फ्रेश जूस को नहीं ले रहे हैं जो यीशु में है। In the name of religion, they have some kind of intoxication which they are lost into. और धर्म के नाम पे बहुत सारी बातें अपने दिमाग में चलती हैं जिसपे वो ध्यान देते जाते हैं। But the book of Song of Solomon says that it is like a fresh juice for us. The love that the Lord provokes in us, it begins from Jesus and we start loving और Him. श्रेष्ठ गीत की पुस्तक हमें ये बताती है कि यीशु मसीह से जो प्रेम आता है वो एक फ्रेश जूस के समान है जो हमारे जीवन में आता है। So 1 John says that you did not love me first, but I loved you और first. पहले यूहन्ना में ये लिखा है कि तुमने मुझसे पहले प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे पहले प्रेम किया है। 1 John 4:16 says God is love. और
He never says a human being is love. उसने कभी ये नहीं कहा कि एक इंसान प्रेम है। So in our relationship with Jesus Christ, He is the love. तो हमारे रिलेशनशिप में यीशु मसीह के साथ वो प्रेम है। We are not love. हम नहीं प्रेम है। When His love flows into us, जब उसका प्रेम हमारे अंदर से बहता है, then we become a person of that godly love. तब हम उसके प्रेम में वो इंसान बन जाते हैं जो परमेश्वर ईश्वरीय प्रेम के इंसान को। The love that we have is not a divine love. जो प्रेम हमें है वो स्वर्गीय या डिवाइन नहीं है। That love is also created by God. वो प्रेम भी परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। And some love is so beautiful that it tenders life, it takes care of life. कुछ प्रेम इतने सुंदर होते हैं जो जिंदगियों को संभालते हैं और उसका ध्यान देते हैं। Like the love of a mother for her child. जैसे एक माता का प्रेम उसके बच्चे के लिए होता है। It's a classic love. बहुत ही अद्भुत प्रेम है। Who gave that love? वो प्रेम किसने दिया है? God. परमेश्वर ने। Because God has created us. क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। Every relation is given by God. क्योंकि हर एक जो संबंध है वो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। The quantum of love in each relationship is poured in by God. और जो प्रेम का जो स्रोत है वो परमेश्वर के द्वारा डाला जाता है। See, the world looks whatever kind of world it is, it looks in this shape because God's love is poured in different ways in different people. जो हम दुनिया में देखते हैं तरह-तरह की जो चीजें हम देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हर एक जन में या हर एक चीज में अलग तरीके से डाला जाता है। Love between friend and friend, father and son, brother and brother, and husband and wife, and love for each other is the main substratum, main base on which the relationship in this world are resting upon. दोस्त का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम और ये सब रिलेशनशिप है जो इस दुनिया में है जिसके द्वारा प्रेम को दर्शाया जाता है। Love in whatever shape is love from God. और प्रेम किसी भी रूप में वो प्रेम परमेश्वर की ओर से। That's why God is love. इसीलिए परमेश्वर प्रेम है। Wherever you see any kind of love, it is God's love. कहीं भी आप कहते हैं किसी भी तरह का प्रेम हो, किसी भी तरह का प्रेम हो क्यों ना हो, वो परमेश्वर की ओर से होता है। But the love that God is talking about in the Song of Solomon is a special love. परंतु परमेश्वर जो इस वचन के द्वारा जो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो एक अद्भुत प्रेम है। A mother loves her child because she is committed to rearing that child into an adult, in a proper adult, in a beautiful adult, in a smart adult. एक माता अपने बच्चे के प्रेम में इसीलिए आती है क्योंकि वो चाहती है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा अडल्ट बने, वो उसकी ग्रूमिंग में लगी रहती है। A love between two brothers is that they flourish together, they love each other until they are on the face of this earth, they are committed to each other as brothers. तो भाइयों के बीच में प्रेम जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों फलवंत हो और इस दुनिया में बढ़ते चले जाएं। But this love cannot replace the love that God has for us. पर ये जो प्रेम है वो उस प्रेम के बदले नहीं हो सकता जो परमेश्वर ने हमें दिया है। We are in a love relationship with God which is above all relationships in this world. परमेश्वर से उस प्रेम के संबंध में है जो हर संबंध से ऊंचा है। So God gives us love according to our needs. तो परमेश्वर हमें प्रेम देता है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। But since we are created in the likeness and image of God, जैसे हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, we always have a desire to know and love our Father. हमें सदैव एक डिजायर रहता है कि और हमें वो प्रेम रहता है अपने परमेश्वर के प्रति। And that love is initiated by God Himself. और वो जो प्रेम है वो परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। God has already loved us. God has already loved us and sent His Son. परमेश्वर ने हमें पहले ही प्रेम किया है और अपने पुत्र को दिया है। So one part of love is okay. तो It's perfect. तो एक जो हिस्सा है उसके प्रेम का वो परफेक्ट है। The other part of love is still to be initiated. और जो दूसरा हिस्सा है प्रेम का वो अभी भी उस पे कार्य करना जरूरी है। A boy loved a girl like anything. एक लड़के ने एक लड़की से बहुत प्रेम किया। But the girl was never aware of the fact that the boy is attracted towards her. परंतु उस लड़की को पता नहीं था कि वो लड़का उससे बहुत प्रेम करता है। One day she scolded the boy and said, "Go away." एक दिन उसने उस लड़के को डांटा और कहा मुझसे दूर चला जा। He could not bear that और वो उस दुख को सह नहीं पाया because it was one-sided love. क्योंकि वो एक तरफ का प्रेम था।
It was not because of love that she scolded. But normally she scolded that you don't come to me. I don't like you. Keep away from me. उसने ऐसे ही उसे डांट दिया और कहा मुझसे दूर हो जा, मैं तुझे पसंद नहीं करती। There was no understanding that they love each other. ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनके बीच में कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। But this boy had a real heart for that girl. परंतु इस लड़के के लिए, उसके हृदय में उस लड़की के लिए बहुत प्रेम था। So the boy went and killed himself. तो उस लड़के ने जाकर आत्महत्या कर ली। What would you say? आप क्या कहोगे इस बारे में? Was this logical? Was this meaningful? क्या ये लॉजिकल है या मीनिंगफुल है? No, it was one-sided. It was one-sided. नहीं, ये एक तरफा था। When God sent His Son and we did not accept Him, but still He died on the cross. Is it logical? जब परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे Now लिए say no. भेजा, Now you say no. जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा, फिर भी वो क्रूस पर हमारे लिए उसने जान दी, तो आप कह सकते हो कि ये प्रेम आधा है। Still people stretch forth their hand, preachers and God Himself, and says, come to Jesus, come to Jesus. We say, no, we don't want to come. Is it logical that He died for us? अभी भी लोग कहते हैं कि आ जाओ यीशु के पास, उसने हमारे लिए अपनी जान दी, फिर भी हम कहते हैं नहीं। क्या ये सही है? Is it right for God to love in this way to us? क्या ये सही है कि परमेश्वर हमसे इस तरह से प्रेम करता है? See, when we talk divine things, at times this mind gets confused. जब हम अलौकिक बातों को करते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। But we have to be very clear how much God loves us. पर हमको आज बहुत ज्यादा अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेनी है कि किस रीति से परमेश्वर हमें प्रेम करता है। Are you in love with Jesus Christ? क्या आप यीशु से प्रेम में हैं? Jesus is in love with you. यीशु आपसे प्रेम करता है। That we can say for sure. ये तो हम कह सकते हैं दावे से। Because He has proved Himself. He died on the cross. क्योंकि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि उस पर अपनी जान देकर। Father has given us grace to accept Him and to be in the fellowship of God's people. That is परमेश्वर His ने हमें love. वो अनुग्रह दिया है कि हम उसे ग्रहण करें और उसके लोगों की संगति में रहें। ये उसका प्रेम है हमारे Now the लिए। question is, are we in love with आज Jesus? हमारे लिए ये प्रश्न है कि क्या हम यीशु के प्रेम में हैं? See, God has given His Holy Spirit to His people परमेश्वर ने अपने आत्मा को अपने लोगों को दिया है to initiate His love within us. कि उसका प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न करे। But in spite of all these blessings, if we do not fall in love with Jesus Christ, then this story is of no use to us. इन सब चीजों के बावजूद भी यदि हम यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते तो इस कहानी का कोई मतलब नहीं है। So better we limit our search to our lover. तो बेहतर होगा कि हम अपने प्रेमी के प्रति जो हमारी खोज है उसको हम सीमित कर दें। Paul says in his letter, I have engaged you to Jesus Christ. पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हें यीशु में एंगेज कर दिया है, तुम्हारी बात लगाई है. तुम्हारी बात लगाई है। This is what Paul says. ऐसा पौलुस कहता है। See, I am the middleman. देखो मैं एक मीडिएटर हूँ, बीच का व्यक्ति। Here is Jesus, your lover, सामने यीशु है जो तुम्हारा and प्रेमी। here are you, the bride. और यहाँ पर तुम हो जो उसकी दुल्हन हो। And I have fixed a love affair between you. I have fixed a relationship between you. और मैंने तुम्हारे बीच में एक संबंध को बांधा है। So what does a preacher do? तो एक प्रचारक क्या करता है? He arranges, he fixes a relationship of the church with Jesus वो Christ. एक संबंध को बनाता है चर्च का यीशु मसीह से। Unless that relationship comes in, जब तक आपका उसमें संबंध ना आ जाए, we won't get fine-tuned with the love of Jesus हम Christ. परमेश्वर के प्रेम से फाइन ट्यून नहीं रहेंगे। Where do you camp your camp? Where do you keep your sheep? आप अपने तंबू को कहाँ खींच के रखे हो और आपने अपने भेड़ बकरियों को कहाँ चलाते हो? Tell me. मुझे बता दो। I don't want to wander here and there. मुझे इधर उधर नहीं भटकना है। There are many people बहुत सारे लोग हैं who want to be in compromise with every situation. वो हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहते हैं, हर चीज में समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। So they are good with Tom, Dick and Harry, everybody. वो हर किसी से राजी रहते हैं, हर किसी से खुश रहते हैं। They want to go to every camp. वो हर तंबू में जाना चाहते हैं। And then they come to Pastor Tarajan and say, और फिर वो पास्टर ताराचंद के पास आते हैं और कहते हैं, Pastor, that is a dead church. पास्टर वो कलीसिया एक मुर्दा कलीसिया है। But still I go there. फिर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर। People are smart. लोग बहुत स्मार्ट हैं, They are good looking people. बहुत सुंदर लोग हैं। And if I die, who will give me a funeral? और यदि मैं मर जाऊँगा तो मुझे गाड़ेगा कौन? So I have to go there. तो मुझे तो जाना पड़ेगा। You are going in a camp आप उस तंबू में जा रहे हो where your lover doesn't stay. जहाँ आपका प्रेमी रहता ही नहीं।
So what will Pastor Tarakchand do? तो पास्टर ताराचंद क्या करेंगे? Gentleman, he is not going to face you. वो एक सज्जन व्यक्ति है, वो आपको फेस नहीं करेंगे। Okay, brother, whatever you feel like. ठीक है भाई, जहाँ भी जाना है जाओ। But your heart doesn't find peace over there. पर आपका जो हृदय है वहाँ पर शांति को नहीं पाता, Because you know that your lover is not there. क्योंकि आप जानते हो कि आपका प्रेमी बात नहीं है। I'll tell you a very good, funny thing. मैं एक बहुत फनी बात आपको बताता हूँ। In America, अमेरिका में there was a church for the white people. गोरों का एक चर्च था And no black person was admitted in that church. और कोई भी काले व्यक्ति को वो लोग नहीं लेते थे कलीसिया में। So from some other city, a black man came and wanted to go to a church. एक दूसरी जगह से, एक दूसरे शहर से एक काला व्यक्ति आता है और वो उस कलीसिया में जाना चाहता है। He never knew the rule of the church. उसको पता नहीं था कि कलीसिया के क्या नियम है। So that poor fellow came into the church and sat on the last bench. तो वो बेचारा आया और कलीसिया में सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गया। So the pastor stopped his sermon तो पास्टर अपने सरमन को उन्होंने रोक दिया, and he told the church, "Brother, see, there is a man at the back seat." और उन्होंने कलीसिया के लोगों को कहा कि पीछे वाली सीट पर एक बैठा है व्यक्ति, That was enough. और वो काफी था। This man, the caretaker of the church, went and told him, "Please go out because this church is not for you." और जो कलीसिया का केयरटेकर था वो चला, वो उस व्यक्ति के पास गया और उसको बोला कि आप यहाँ से जाइए क्योंकि ये कलीसिया आपके लिए नहीं है। That man was a very emotional man and he loved God like anything. और वो व्यक्ति बहुत इमोशनल था क्योंकि वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। So he stood away from the church. At the gate of the church, he stood over there. और वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया, थोड़ा दूर पर खड़ा हो गया And he started weeping. और वो रोने लगा Tears rolled from his eyes. और उसके आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। Suddenly a person came and spoke to him. और एक व्यक्ति आया और उससे बात करने लगा। "Why are you weeping?" कि तुम क्यों रो रहे हो? "See, I wanted to attend the church. I am from the other city. उसने कहा कि मैं दूसरे शहर से आया हूँ और कलीसिया में मैं बैठना चाहता हूँ और But- सभा को अटेंड करना But they चाहता have हूँ। checked me out saying that this is not for the black people. पर उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया यह कहकर कि ये काले लोगों के लिए नहीं है। I love my Jesus. I cannot bear this." उसने कहा मैं अपने यीशु से प्रेम करता हूँ और मैं ये सह नहीं सकता। So the person put his hand on his shoulder तो उस व्यक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, and told him, "I am Jesus Christ. उसने कहा मैं यीशु हूँ। When I have not entered this church, how would you enter this church?" जब मैं इस कलीसिया में एंटर नहीं कर सकता तो तुम कैसे एंटर कर सकते हो? Lot of church, but no Jesus. बहुत सारी कलीसिया है पर यीशु ही नहीं है। Dear ones, don't waste your time. मेरे प्रिय भाई बहनों, अपना समय व्यर्थ मत व्यर्थ Go करो। to the best people who go to the best camp, that is the Lord's camp. उस तंबू में जाओ जहाँ परमेश्वर रहता है। Don't wander here and there, you are wasting your time. इधर उधर मत भटको, अपने समय को व्यर्थ में व्यतीत मत करो। Because you are like a compound without a boundary wall. क्योंकि आप उस कंपाउंड की तरह हो जिसकी बाउंड्री वॉल ही नहीं है। You won't be able to sustain yourself. आप अपने आप को वहाँ नहीं रख सकते। Here the lover says that, the lady says that, "I want to go only to the place where my lover is found. यहाँ पर वो वधू कहती है कि मुझे उसी जगह पर जाना है जहाँ पर मेरा प्रेमी पाया जाता है। I don't want to waste my time here and मुझे there." इधर उधर अपने समय को व्यर्थ व्यतीत नहीं करना है। Make a promise to the Lord this afternoon. आज इस दोपहर के समय परमेश्वर से एक वाचा को बांधिए I'll be true to searching my camp. कि मैं अपने इस तंबू को ढूंढने में परमेश्वर के प्रति I'll विश्वास never रखूंगा। deceive myself. I'll never deceive और मैं myself. अपने आप को कभी धोखा नहीं दूंगा। I'll never say that I go here but my Lord lives there. और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इधर जाता हूँ पर मेरा परमेश्वर उधर रहता है। I will go there where my Father lives, my Lord मैं lives. वहीं जाऊंगा जहाँ मेरा परमेश्वर रहता है। And to those who want to be more liberal and ministry-minded people, और उन लोगों के लिए जो थोड़े से लिबरल रहना चाहते हैं और सेवकाई में रहना चाहते my हैं, sincere advice to you would be, मेरी एक विनम्र निवेदन आपके लिए ये है, if you go to such a place, go as a missionary. जहाँ आप ऐसी जगह पर जाते हो एक मिशनरी के रूप में जाओ। Testify the Lord. अपने परमेश्वर की गवाही दो। Turn people back to Jesus. परमेश्वर के लोगों को उसके सम्मुख लेकर The आओ। presence of Lord, the love of Lord that you have, share it with those people. परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की उपस्थिति जो आपके पास है वो लोगों के साथ बांटो। Never go to receive something from there, but always go to give. वहाँ पर लेने के लिए कुछ मत जाओ पर देने के लिए जाओ। I am such a pastor who is quite liberal. मैं वो पास्टर हूँ जो बहुत लिबरल हूँ। So at times I don't force my opinion about people. तो मैं लोगों के ऊपर अपनी बातों को थोपता नहीं हूँ। But I leave you to yourself to judge how to balance
the place where the Lord is and how to be there always in the presence of God. और मैं आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ और आपके निर्णय के लिए सौंपता हूँ कि आप वहाँ जाओगे जहाँ परमेश्वर सदैव रहता है आपके साथ। As a Christian leader, I love all pastors. मैं एक मसीह लीडर होने के नाते सब पास्टरों से प्रेम करता हूँ। I always have my prayer and goodwill for them. और मेरे लिए हमेशा उनके लिए अच्छी दुआएं होती है। So this place is not to criticize फिर somebody, ये वो जगह नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, but this is the place where you have to be smart about yourself. पर ये वो जगह है जहाँ पे हमें स्मार्ट हो जाना है अपने लिए। Choose the right place. सही जगह को चुने। The lady is asking her lover, where should I go? वो प्रेमिका अपने प्रेमी से पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँ? Where is your tent? तुम्हारा तंबू कहाँ है? Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनना। You talk to 100 people, where should I go? Where should I go? Did you ask Jesus Christ? आप 100 लोगों से पूछते हो कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ? क्या आपने यीशु से पूछा है Where is your tent? कि आपका तंबू कहाँ है? Where do you permit me to go? कि आप मुझे कहाँ अनुमति देते हैं? Where would you meet me? आप मुझे कहाँ मिलेंगे परमेश्वर? My going and my spending time in places is with only one purpose, to meet you. मेरा जगह जगह जाना और खोज करना वो इसी पर मकसद से होता है कि मैं तुम्हें मिलूं। If you don't meet me over there, then what's my point going there? यदि मैं तुमसे वहाँ नहीं मिल सकता तो मेरा मतलब ही नहीं है उस जगह पर जाने का। Either you promise me that wherever I go, you will come there. या तो यीशु आप मुझे प्रॉमिस करें कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ आप रहोगे, Or you tell me where I should go and where I should not go. और या तो आप मुझे बताओ मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। The second part of the message, दूसरा भाग इस मैसेज का 8th verse. verse 8. 8वां वचन। If you do not know, O most beautiful among women, हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह नहीं जानती, you are beautiful. तुम सुंदर हो। Why are you beautiful? तुम क्यों सुंदर हो? Because you have a love for me. क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है। You have a longing for me. तुम्हारे मन में मेरे लिए लालसा है। You have expressed yourself. तुमने अपने आप को मेरे सामने खोला है। When is a person beautiful in the sight of the Lord? वो कब ऐसा होता है कि वो व्यक्ति सुंदर हो परमेश्वर की निगाहों में? When we express ourselves. जब हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब हम The अपने आप को moment- बताते हैं। The moment you say that Jesus, I love you and I want to be in your company only, I want to be in your companionship only, then the love starts picking up. जब आप कहते हो कि यीशु तू ही मेरा प्रेमी है और मैं तेरे ही साथ रहूंगा, तब आपका प्रेम उसमें बढ़ता जाता है। And gradually it comes to the level where Jesus wants to take you. और वो प्रेम जो है वो स्तर तक आता है जहाँ पर यीशु आपको ले जाना चाहते हैं। And God says this child is beautiful. और परमेश्वर कहता है कि ये व्यक्ति, ये बच्चा Most beautiful among women. हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो। So, this is very important point. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है Jesus is most beautiful among men. कि यीशु मनुष्यों के बीच में सबसे सुंदर था। He is the most beautiful वो today. है आज भी सबसे And he सुंदर shall be the most beautiful और वो forever. रहेगा सबसे सुंदर आगे भी। But which woman can be the most beautiful among women? तो ऐसी कौन सी स्त्री है जो सबसे सुंदर रह सकती है स्त्रियों के बीच में? What makes a woman the best among women? तो ऐसी कौन सी बात होती है जो एक स्त्री को सुंदर बनाती है स्त्रियों के बीच में? When you express yourself. जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, When you say, Lord, I love you. जब आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्यार करती हूँ, When you say, Lord, I hunger and thirst for you. जब आप कहते हो कि परमेश्वर मुझे आपके लिए भूख और प्यास है, And when you say that I want to go to only those places where you are. और जब आप कहते हो कि मुझे उन्हीं जगहों पे जाना है जहाँ आप मौजूद हो। See, the Bible says the moments that we spend in the presence of the Lord are better than thousands of years spent in this world. वचन कहता है कि वो पल जो आप परमेश्वर के साथ बिताते हो वो हजारों पलों के से बेहतर है जो आप परमेश्वर के साथ बिताते हो। Can you differentiate between the two? क्या आप इन दोनों के बीच में अंतर को देख सकते हो? Can you differentiate between your two kinds of moments? तो ये दो मोमेंट्स जो है इनके बीच में आप अंतर को देख सकते हो? The moments that you spend with the Lord, the moments that you spend in this world, can you identify them? Very first stage is, can you identify them? वो जो समय जो आप इस दुनिया में बिताते हो, वो जो समय जो आप परमेश्वर के सामने बिताते हो, क्या
Listen very carefully. There are many believers who are not able to differentiate between the time spent with the Lord and time spent with the Lord. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो उस समय का जो वो इस दुनिया में बिताते हैं और जो समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसमें वो अंतर को नहीं देख पाते। At the moment you start seeing the difference, जब आप उस अंतर को देख पाओगे, then the time will come when you will start picking up and choosing. तब वो समय आ जाएगा जब आप चुनने लगोगे। You will be astonished. Oh, I spent so less time with the Lord and I have so much time in the world. आप ऐसे सोचोगे, आप अचंभा में रह जाओगे कि मैंने कितना कम समय परमेश्वर के साथ बिताया और कितना ज्यादा समय व्यतीत कर दिया इस संसार में। Let me change the balance now. मैं इस बैलेंस को बदल देता हूँ। Let me spend more time with the Lord and less time with the world. मैं परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताता हूँ और इस दुनियादारी में अपने समय को कम व्यतीत करता हूँ। And a stage in your life will come, but that you will be in this world, but you have no time for the world. पर ऐसा समय आ जाएगा जब आप इस दुनिया में तो रहोगे, पर इस दुनिया के लिए आपके पास कोई समय नहीं होगा। You will say this world, bye bye. You are not worthy of me. आप इस दुनिया को कहोगे बाय बाय, आप मेरे लायक नहीं हो। I don't want to spend even a single moment with you. मैं एक क्षण भी आपके साथ व्यर्थ व्यतीत नहीं करना। Because in this world I can stay with my lover, I can stay with my master, I can stay with my companion. Why should I spend my time with you? जब इस दुनिया में हम रह करके परमेश्वर के साथ अपने सारे पलों को बिता सकते हैं, तो हम क्यों दुनियादारी में लगे रहे? Paul says, पौलुस कहते हैं, I am crucified with Christ. मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। And whatever I live in is in Jesus Christ, the days that I live in this world. और इस दुनिया में जितने भी दिन मैं रहता हूँ, यीशु में होकर रहता हूँ। Can you understand that difference? क्या आप इस अंतर को समझ सकते हैं? As a good believer, start from today. एक अच्छे विश्वासी होने के नाते आज से ही शुरू करें। Divide your time intelligently अपने समय को इंटेलिजेंटली डिवाइड करें and see how much you are giving to the Lord. और आप देखें आप परमेश्वर को कितना दे रहे हैं। Because whatever is spent in this world is a waste, sheer waste. क्योंकि इस दुनिया में आप जितना भी समय व्यतीत करते हैं वो वेस्ट की बात है, एक व्यर्थ बात है। But the time you spend with the Lord is the real time. परंतु परमेश्वर के साथ एक पल बिताया हुआ बहुत महत्वपूर्ण है। That doesn't mean that you will leave everything and sit at the feet of Jesus. इसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें और हमेशा परमेश्वर के चरणों में ही बैठेंगे। You will be very active in this world. आप इस दुनिया में बहुत एक्टिव रहेंगे। But always in the presence and always in the holiness of Jesus. हमेशा यीशु की प्रेजेंस में और उसकी पवित्रता में। So the lover asks, where do you pitch your camp? और वो प्रेमिका पूछती है कि तुमने अपने तंबू को कहाँ बनाया है? What should be the answer? तो क्या आंसर होना चाहिए? This is the crux of the message, that the point we are going to. जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, ये आज के मैसेज का सार है। What should be the answer? कि क्या आंसर होना चाहिए? जब What should the lover say? जब उसने बोला कि आपका तंबू कहाँ है, क्या आंसर होना चाहिए? What should the lover say? उस प्रेमी को क्या उत्तर देना चाहिए? Give her an address. एड्रेस दे दे। Come to Chowpatty, I stay there. चौपाटी पे आ जाना, मैं वहाँ रहता हूँ। My camp is in Chowpatty, मेरा कैंप चौपाटी में है or my camp is in Birsha, और मेरा कैंप बेरसा में है or my camp is in Bansal College. या मेरा कैंप बंसल कॉलेज में है। What should be the answer? तो आंसर क्या होना चाहिए? Yes. कोई भी बोल सकता है। The answer is given, it's in verse 8. उत्तर दिया हुआ है 8वें वचन में। के पास अपनी बकरियों Hmm? चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों And? भेड़ बकरियों की फूलों की छिलकों पर This is what. See, when in a jungle, when they shoot a tiger, एक जंगल में जब एक टाइगर को मारा जाता है and if the tiger escapes, और यदि वो टाइगर भाग जाता है, tiger is hurt, he has taken a bullet but has not fallen down, runs away. और उस शेर को लग तो जाती है पर वो गिरता नहीं है, वो भाग जाता है। What does the hunter do? Anybody? It's an old story. Nowadays people don't know what to do because they don't know hunting. Old hunters, can you tell me what a hunter would do? तो शिकारी क्या करता है? पैर के निशान के पीछे फुटप्रिंट्स उसके they follow the footprint either or the blood that oozes out, na? So the blood starts falling in drops. तो उसका जो खून है वो ड्रॉप्स करके बूंद-बूंद करके गिरता है। So the hunter goes after the tiger. तो जो शिकारी होता है वो उस शेर के पीछे जाता है। Now how to track where the tiger has gone? वो कैसे ढूंढे वो शेर कहाँ गया? Either through the footprints or through the blood drops that are falling. या तो उसके वो पैर पंजों के निशान का वो पीछा करता है या तो उन खून
where the tiger is hiding. और बहुत जल्द वो पा लेता है वो जगह जहाँ पर वो शेर छुपा हुआ होता He है shoots another shot and kills him. और वो एक और गोली उसको मार देता है उसको और वो मर जाता है। What is the mission of a hunter? तो उस शिकारी का क्या मिशन है? To follow the footprints of the tiger, कि उस शेर के वो जो पंजे के निशान है उसके पीछे पीछे जाए, to reach the destination. कि उस डेस्टिनेशन को उस जगह को पहुंच जाए जहां वो शेर है। Many Christians are innocent fools. बहुत सारे मसीह जो होते हैं वो Innocent fools. मूर्ख होते हैं innocent, Or they are sincerely wrong. और वो सिंसियरली गलत होते हैं। I asked Jesus, he did not tell me. और मैंने यीशु से पूछा उसने कहा ही नहीं। So I don't know whether it's in Chopati or in Bersha or in Bansal College. I sit in my own place. तो मुझे पता ही नहीं कि वो चौपाटी में है कि बेरशा में है कि बंसल कॉलेज में, मैं अपनी जगह पर बैठा रहूंगा। Because Jesus has not told क्योंकि me. यीशु ने मुझे बताया ही नहीं। The word says, the lover says, वचन कहता है जो प्रेमी है वो कहती है you have to trace something. कि तुम्हें उस चीज को ढूंढना है, You have to go into the footsteps. तुमको उसके पैरों के निशान में जाना है। You see, where the shepherd takes his flock, जहाँ वो चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता है, the flock is of many sheep, it's not just one. और बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं, एक ही भेड़ या बकरी नहीं होती। So you have many footprints. तो बहुत सारे उसके पैर के निशान होते हैं। Still, even if you go to villages around, you will see how many footprints are there of the animals who go grazing. आप यदि आसपास गांव में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे जानवर अपने निशान पैरों के निशान को छोड़ते हैं जब घास चरने के लिए जाते हैं। And particularly when the land is wet, you see the marks particularly very clearly on the ground. और जब जमीन गीली होती है तो बहुत साफ तरीके से हमें दिखता है उनके पैरों के निशान। So if one has to search where his cattle are, तो जब किसी को ढूंढना है कि उसके भेड़ बकरियां कहाँ पर हैं, he'll just follow the footprints तो वो सिर्फ उनके पैरों के निशान के पीछे पीछे जाता है and he'll know where the cattle are. और उसको पता चल जाता है कि उसकी भेड़ बकरियां कहाँ हैं। God says you have to be very wise in searching the Lord. परमेश्वर कहता है कि हमें बहुत बुद्धिमान होना है परमेश्वर को ढूंढने में। There are many sheep who are following that shepherd. बहुत सारी ऐसी भेड़ बकरियां हैं जो उस चरवाहे के पीछे हैं। Follow them. उनके पीछे चलो। Hallelujah. हालेलुया। Many Christians are looking for the address that Jesus is going to give them. बहुत सारे मसीह लोग हैं उस एड्रेस के पीछे जो यीशु उन्हें देना चाहता है। I am looking for you, O Lord, but I am not able to find. हे प्रभु, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ पर मैं आपको पा नहीं पा रहा हूँ। So I am okay at my place, but there is something wrong with you, God, because you are not telling me the address. मैं अपनी जगह ठीक हूँ परमेश्वर, पर आपके साथ कुछ गलत है क्योंकि मैं एड्रेस ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जहाँ आप हो। I go to church, I read Bible, I pray every time, but I have nothing less in me. I am doing my best. It is you who is not telling me the place. मैं चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, संगति में रहता हूँ, पर आप मुझे बता ही नहीं रहे हो कि आप कहाँ हो। How can I walk on your path unless you tell me? मैं कैसे चल सकता हूँ उस मार्ग में जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। God says, be wise. परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान हो जा। Where God's sheep are, just follow them. परमेश्वर की जो भेड़ें हैं वो जिस रास्ते में चल रही है उसके पीछे हो लीजिए। Those who are following the shepherd जो उस चरवाहे के पीछे चल रहे हैं have a discipline of following. उनमें वो नियम है, उनमें वो डिसिप्लिन है जिससे वो उसका पीछा कर रहे हैं। See, there is something very opposite in our area and in Israel. There is a comparison. हमारे क्षेत्र में एक बहुत अलग चीज है जो कि इजराइल में है और दोनों में बहुत अंतर है। In Israel, when they rear sheep, इजराइल में जब वो भेड़ों को चराते हैं the shepherd goes in front and the sheep follow him. तो चरवाहा आगे चलता है और भेड़ें पीछे पीछे चलती हैं। In our country, और हमारे देश में cow and bullocks and गाय बैल they are ahead of you, and you just from behind you just hit them and make them on the way. वो आप गाय बैलों के पीछे रहते हो और जो चरवाहा है वो पीछे रहता है और उसको मारता है और उसको आगे चलाता है। The Indian style is the world global style of finding the religion. और जो इंडियन स्टाइल है वो वर्ल्ड ग्लोबल स्टाइल है धर्म को ढूंढने का। Everybody is walking his own way, हर एक जन अपनी अपनी राह पर चल रहा है and the shepherd is saying turn right, turn left, and they don't hear and they do whatever they और want. जो चरवाहा है वो बोल रहा है सीधे चलो, सीधे हाथ में मुड़ो, उल्टे हाथ में मुड़ो, पर वो नहीं सुनते, वो बस चलते जाते हैं अपनी राह पर।
But in Israel, the shepherd goes ahead of them. पर इज़राइल में जो चरवाहा होता है वो अपनी जो भेड़ें होती है उसके आगे आगे चलता है। One of the problems with the sheep is this: एक जो समस्या है जो भेड़ों के साथ है वो ये है, it never raises her head and to look where she is going. वो अपना सिर कभी नहीं उठाती देखने के लिए कि मुझे कहाँ जाना है। The head is always down, उसका सिर हमेशा जमीन की ओर है and it just walks at the footstep of the master or the shepherd. और वो अपने चरवाहे के जो कदम रहते हैं उसको देख देख के आगे चलती जाती है। And the sheep behind they follow the footstep of the sheep who are going in front. और जो भेड़ रहती है पीछे वो उस भेड़ का पीछा करती है जो उसके आगे चलती है। It is said that if a herd of sheep is going, ऐसा कहा जाता है कि यदि एक भेड़ों का झुंड जा रहा है and if they go and reach a steep edge, from there they could fall down. और वो ऐसी जगह पे यदि पहुंच जाए जहां उनको वो गिर सकते हैं, If one falls, all fall. और यदि एक गिरता है तो सारे गिर जाते हैं Because they know just one thing: to follow the sheep in front of क्योंकि them. उनको सिर्फ यही पता रहता है कि मेरे सामने जो आगे भेड़ जा रही है मुझे उसी का पीछा करना है। Don't join a camp where the sheep doesn't know where they are going. उस तंबू में न जाए जहां भेड़ों को पता नहीं कि वो कहां जा रही है। Follow the footprints of those sheep which are following a sincere master. उन भेड़ों के पीछे चले जो एक सिंसियर मास्टर के पीछे चल रही है। You can make that out. आप वो जज कर सकते हो। Your meaningful walk will always satisfy you in your life. आपकी जो चाल है, आपका जो मार्ग है उसमें चलने का, वो हमेशा आपको सेटिस्फाई करेगा अपने जीवन में। So, following the hoofs is the main point that we took. The previous point we already seen in the last message. पहला वाला जो पॉइंट था वो हमने पिछले मैसेज में काफी देखा था Your camp, where is your camp? कि आपका तंबू कहाँ पर है। The message for today is आज that का जो वचन है वो ये follow है the footprints. कि उसके नक्शे कदम पर चलो, उसके पैरों के चिन्ह पे चलो। And the more important thing, which is the basic thing of the book of Song of Solomon, that I am going to tell you now. और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्रेष्ठ की किताब में है, जो बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। You see, when we talk about relationships, जब हम संबंधों के बारे में बात करते हैं, when we go into deeper relationships, जब हम गहरे वाले रिलेशनशिप में जाते हैं, and when we start describing each other, जब हम एक दूसरे को बताने लगते हैं, we talk about the details of each other. तो हम काफी गहराई में एक दूसरे के बारे में बताते हैं। When we talk about the personalities of each other, जब हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं, it signifies a deeper relationship. वो हमें बताता है कि हम काफी गहरे संबंध में जा चुके हैं। See, a boy and girl are in a love relationship, यदि एक लड़का और लड़की अपने प्रेम के संबंध में है, and they have mobile phones, both of them. और यदि उनके पास मोबाइल फोन्स है दोनों के पास, How long would they talk? Your suggestion. कितनी देर में बात कर सकते हैं? आप बता सकते हैं How long? कितनी देर? 1 hour, 2 hours, 3 hours, half minute, 10 minutes. How long would they talk? Huh? Capacity के अनुसार, the person's capacity and capacity of the mobile. उस व्यक्ति के The charge goes down, ना? उस व्यक्ति की क्षमता The में, charge उस goes मोबाइल down. की क्षमता में वो बात करते हैं। A boy and a girl, what would they talk about? एक लड़का और लड़की क्या बात कर सकते हैं? Hours together, what would they talk? घंटों घंटों क्या बात कर सकते हैं? What do you think? क्या सोचते हो? I think most of the things they'll repeat. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी बातें वो रिपीट करते रहे। Maybe 1,000 times they say, I love you. ऐसा हो सकता है कि 1000 बार बोलेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Which could be done only in one time also. Saying one time that I love you was enough. एक बार बोलने से भी वो काफी था, फिर भी But वो बोलते 1,000 हैं, times they'll say. पर वो 1000 बार बोलते हैं। What is behind that conversation? उस जो कॉन्वर्सेशन है, उनकी बातचीत के पीछे क्या बात है? See, is there something special behind that conversation? उनकी बातचीत के पीछे ऐसी कौन सी बात है? What is there? क्या है? Their love, their attraction for each other. उनका प्रेम, उनका एक दूसरे के प्रति आकर्षण। Then we go into details. फिर हम गहराई में जाते हैं। Your voice is so sweet. तुम्हारी आवाज कितनी सुंदर है। Your eyes are so beautiful, like that of a deer. तुम्हारी आंखें हिरण के समान सुंदर है। And that
that dress that you wear, it's gorgeous. I like that dress. और तुम जो कपड़े पहनती हो वो कितना सुंदर है। So the girl appreciates the boy appreciates the girl, hours together. वो जो लड़का है वो लड़की की तारीफ करता है और जो लड़की है वो लड़के की तारीफ करती है घंटों घंटों। As far as beauty is concerned, both are failed. जो हालांकि जहाँ तक सुंदरता की बात है दोनों फेल। But they don't stop talking with पर each वो other. दोनों चुप ही नहीं होते दोनों उसके एक दूसरे से बात करने में। What is there behind that? तो क्या बात है जो उनकी इन बातों के पीछे है? See, what important point I am making is this, that when you are in love with Jesus जो Christ, महत्वपूर्ण बात है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब आप यीशु से प्रेम में होते हैं, you talk about the details of his personality and he talks about the details of your personality. वो आपके चरित्र के डिटेल्स में जाता है और आप उसके चरित्र के डिटेल्स में जाते हैं। This is called intimate relationship. और ये एक नजदीकी का संबंध है। You see, the world may not like that, but it is still there. दुनिया को शायद ये चीज पसंद ना हो पर फिर भी वो है। When we used to stay in 136 Dhar Road, जब हम 136 धार रोड में रहते थे so there were snakes also तो around. वहाँ पर सांप भी होते थे आसपास। But there was some times when the snakes together used to come and dance, और the male and female. कुछ ऐसे समय भी होता था कि मेल सांप और फीमेल सांप आप एक साथ होकर नाचते थे And that was their love time. और वो उनका प्रेम का समय होता था। You can go even very close to them, they will not move. और यदि आप उनके पास भी चले जाओ तो भी वो हिलेंगे। And if you want to kill them, you can very easily kill them. और यदि आप उन्हें मारना भी चाहो तो भी आप बहुत आसानी से उनको मार Because that is their gala time. क्योंकि वो उनके लिए अच्छा समय है। You know, because they don't care for anybody. क्योंकि वो किसी भी बात की सोच में नहीं रहते, वो किसी भी बात की चिंता नहीं करते। See, when we talk about this, जब हम इस बारे में बात करते हैं we should understand. You see, I'm talking very delicate thing because at times when we talk about beauty, we talk about the body description, we say this is vulgar. जब हम सुंदरता की बात करते हैं तो हम बॉडी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं और कहा कहते हैं कि ये गंदा है। It's not vulgar. ये गंदा नहीं है। It's out of love that is coming out. ये प्रेम के बलबूते होता है जो ये बाहर आता है। When the lover describes the body structure of the lady, जब जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है उस प्रेमिका से उसके शरीर के बारे में बात करता है, it's always with appreciation. तो वो उसकी बड़ाई के लिए होता है। It's not with a vulgar thought. वो एक बुरे विचार के साथ नहीं होता, वो सिर्फ उसकी बड़ाई के लिए होता है। You see, in this world, इस दुनिया में most of the people who are describing or looking at the bodies, बहुत सारे लोग जो शरीरों को देख रहे हैं या शरीरों के बारे में बात कर रहे हैं, they have a vulgar look. उनका नजरिया देखने का नजरिया बहुत गंदा होता है। With all the porn sites in the internet, और बहुत सारी अश्लील तस्वीरें और वीडियोस जो होती हैं इंटरनेट पे, you always have a vulgar look. आपकी निगाहें हमेशा गंदी हो जाती हैं And gradually your eyes become dark. और आपकी आंखें अंधी हो जाती हैं। Because God says, if your eyes have light, then everything is enlightened. If you are dark in your own eyes, everything is dark. क्योंकि वचन कहता है कि यदि आंख में वो उजियारा है तो आपका सारा शरीर उजियारा है, और यदि आंख में अंधियारा है तो आपका सारा शरीर अंधकार है। So the lamp of the body is the eye. तो Diya. शरीर का दिया आंख है। Don't spoil your lamp. तो अपने जो दिया है उस अपने दिए को खराब ना करें। God has given you beautiful eyes. परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर आंखें दी है, And they become more beautiful when you see things in the beautiful way, not in a vulgar way. और आप वो और ज्यादा सुंदर हो जाती है जब आप उसको और सुंदर रीति से देखते हैं और गंदी तरह से ना देखें। Pray to the Lord. परमेश्वर से प्रार्थना करें I want to be in love with you and in love with the person whom you have given me, and my eyes should always be fair and beautiful and never vulgar. परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि मैं तुमसे कि परमेश्वर मैं आपसे उसी रीति से प्रेम करूं और मैं उस व्यक्ति से उसी रीति से प्रेम करूं जिसे आपने मेरी जिंदगी में दिया है, और मेरी आंखें उसे इस तरह से देखें जिसे आप देखना चाहते हो। You see, true lovers don't like to share their private moments with anybody. जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो अपने प्राइवेट मोमेंट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। That's a sign of true love. वो सच्चे प्रेमी का निशानी है। Are you liking this message? क्या आप इस वचन को पसंद कर रहे हो? I'm going
I am going in those details where pastors do not go. मैं उन गहराई में जा रहा हूँ जहाँ पर पास्टर्स नहीं जाते, But we need to understand. पर हमें इस चीज को समझ जाना है। Up to verse 17. 17वें वचन तक And in the whole book of Song of और Solomon, पूरे श्रेष्ठ गीत की किताब में there is a description of the lover and the lady. और जो प्रेमी और प्रेमिका है उन दोनों की डिस्क्रिप्शन, उनके बातों के बारे में लिखा हुआ है। Unless you have concentration on each other, you don't have the true love. जब तक आप एक दूसरे के प्रति कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो आपके बीच में वो सच्चा प्रेम नहीं है। There is a special place for a special love in Jesus Christ. आपके लिए आपके पास वो स्पेशल प्लेस है, वो स्पेशल प्रेम के लिए जो यीशु मसीह में है। And that love is to be picked up, to be pushed as a button to put it on in our life. और वो प्रेम हमारे जीवन में उस बटन के समान होना चाहिए जो दब जाए और हमारे जीवन को उठा दे। Has Jesus provoked you? क्या यीशु ने हमको प्रोवोक किया है? क्या यीशु ने हमें उठाया है? Is your love button for Jesus put on? क्या आपका प्रेम का बटन यीशु के लिए चालू है? Is it off and you are saying I love, I love, I love? क्या वो बटन बंद है और आप कह रहे हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? Have you concentrated on the beauty of Jesus Christ? क्या आपने यीशु की सुंदरता पे कंसंट्रेट किया है? Have you concentrated on His love? क्या आपने उसके प्रेम पर कंसंट्रेट किया His है? compassion? उसके दया पर आपने क्या ध्यान His दिया है? holiness? उसकी पवित्रता पे आपने ध्यान दिया है क्या? His sacrifice? उसके सैक्रिफाइस पे, उसके बलिदान पर आपने ध्यान दिया है क्या? Your love affair has umpteen things to see in your Lord Jesus Christ. आपका जो प्रेम संबंध है अपने यीशु के साथ, उसमें हजारों बातें हैं जो आप यीशु के लिए देखते हैं। Are you looking into that? क्या आप उन बातों को देख रहे हो? Or just put a cross on your house and say, okay, praise the Lord? क्या सिर्फ क्रूस के चिन्ह को अपने घर पर लगा देते हो और बोलते हो परमेश्वर की स्तुति हो? We are in a love relationship with God. हम परमेश्वर से एक प्रेम के संबंध में हैं। And when you read the other verses और यदि हम दूसरे वचनों को देखें that I have quoted here, 8 to 17, जो मैंने यहाँ बताया है 8वें से 17वें वचन तक, they start describing about their physical beauty. वो अपनी शारीरिक सुंदरता के बारे में एक दूसरे को बताने लग जाते हैं। And that beauty that you watch in each other और वो सुंदरता जो आप एक दूसरे में देखते हो shows you the intimacy. वो आपकी करीबी को बताता है। Let us be close to the Lord आइए हम परमेश्वर के करीबी में आ जाए and let us be intimate to Him. और उसकी करीबी में आ जाए। Tell Him what all you like about Jesus Christ. उसे बताएं कि आपको उस यीशु में क्या क्या पसंद है। Did you ever tell Him? क्या आपने कभी यीशु को ये बताया है Jesus, I love your compassion for me. कि यीशु मुझे आपकी दया बहुत pसंद है जो मेरे लिए है? Jesus, I love your faithfulness because all may leave me but you are not going कि to. परमेश्वर आपकी उस विश्वास योग्यता को मैं पसंद करता हूँ कि हर एक जन जो कोई भी मुझे छोड़ सकता है पर आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। Jesus, I love you because you sacrificed your life for me. यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ क्योंकि आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान किया। Your sacrifice is a real attraction for me. कि आपका बलिदान मेरे लिए मुझे आकर्षित करता है आपकी ओर। So many beautiful things in my Lord. इतनी सारी सुंदर बातें हमारे परमेश्वर में, But we don't appreciate. पर हम उसे बताते ही नहीं, हम उसके Because बारे we में are, चर्चा ही नहीं करते because we are not in a love affair. क्योंकि हम उससे प्रेम के संबंध में नहीं है। Bible reiterates again and again says, बाइबल हमें बार बार बताती है there is a special relationship between me and my Lord. कि मेरा और मेरे परमेश्वर के बीच में एक स्पेशल संबंध है। This cannot be compared with any relationship on this वो इस earth. दुनिया के किसी भी संबंधों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, एक अलग ही रिश्ता है। But a beautiful relationship that God has given between a husband and a wife. एक सुंदर संबंध जो एक पति पत्नी के बीच में परमेश्वर ने दिया है, God picks up that example to teach us. परमेश्वर उस संबंध को उठाता है हमें सिखाने के लिए। God permits His saints to write on these subjects so as to indicate us how we can reach our love for the Lord. परमेश्वर अपने संतों को यह अनुमति देता है कि वो इस पति पत्नी के संबंध के बारे में लिखे और वो हमें बताए कि परमेश्वर हमसे किस तरह से इस तरह प्रेम करता है। I have already given you Psalm 45. मैंने भजन संहिता 45 आपको कहा। We will look into this in the next week. अगले हफ्ते में हम इसके और देखेंगे। Psalm 45. भजन संहिता उसका 45। And in the New Testament, wherever Paul or other saints say that Jesus is the bridegroom and we are the bride. और नए नियम में जहाँ कहीं भी ये लिखा है कि यीशु मसीह दुल्हा है और हम उसकी दुल्हन है। And He is the most beautiful one and we have to beautify ourselves to meet Him. और वो सबसे सुंदर है और हमें अपने आप को सुंदर बनाना है उससे मिलने के लिए। That would be a very special part of our study where we will see that how we can become up to date with our lover,
how perfect He is and how imperfect we are. और वो बहुत एक अद्भुत स्टडी होगी जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हमें परमेश्वर के समान बनते जाना है और कैसा वो सिद्ध है और हम कैसे असिद्ध है। The beautiful part of our relationship with Jesus Christ is, बहुत सुंदर जो हमारा रिलेशनशिप है यीशु मसीह से वो ये है on one side we have a perfect lover, कि एक तरफ वो प्रेमी है जो सिद्ध प्रेम करता है and on the other side we are the weak और दूसरी bride. साइड हम हैं जो परफेक्ट नहीं है, उसकी दुल्हन। He works on us. वो हम पे काम कर रहा है, He makes us beautiful. वो हमें सुंदर बनाता है। We cannot make ourselves beautiful. हम अपने आप को खुद से सुंदर नहीं बना सकते। Since He has made us His bride, जैसे उसने हमें अपनी दुल्हन बनाया है, He is preparing us. उसने हमको हमें तैयार कर रहा है। When the Spirit जब आत्मा and the bride says come, और दुल्हन कहती है कि आ, then Jesus will come. तब यीशु आएगा। So when will the bride and the Spirit say come? तब वो कब होगा जब वो आत्मा और दुल्हन कहेगी कि यीशु आ, When we are prepared. जब हम तैयार होंगे। There are many weddings these days which take a lot of time. बहुत सारे विवाह होते हैं आजकल के दिनों में जो बहुत सारा समय लेते हैं। The pastors have to wait in the vestry पास्टर्स को कलीसिया में बैठना होता है because the bride is in the beauty parlor, दुल्हन जो होती है वो पार्लर में होती है and the parlor woman has only one day to show her authority. और जो पार्लर की जो लेडी होती है जो वहाँ काम करती है एक ही दिन होता है उसके पास अपनी कला को दिखाने के लिए। So when you go and say you work on this lady, she is getting married, so she'll come to your beauty parlor. She'll say okay 1 hour is enough. जब आप जाते हो और उससे कहते हो कि ये स्त्री आएगी तुम्हारे वहाँ पर और तुम्हें इसे तैयार करना है तो वो कहती है कि हाँ 1 घंटा काफी है। But in reality when she goes there she takes 3 hours. पर यदि आप देखो तो सचमुच में वो 3 घंटे लेती है। And the pastor is waiting. और वो पास्टर जो होते हैं वो वेट करते जाते हैं। And the family is waiting. और परिवार इंतजार करता रहता है। And everybody is waiting. और सब लोग इंतजार करते हैं। And they get restless. और सब लोग बेचैन हो जाते हैं। And the worst part of it that I have observed, और सबसे बुरी बात वो ये है जो मैंने ऑब्जर्व की है, the kind of makeup that they make, the bride is made as bad as possible. और इतना बुरा मेकअप किया जाता है कि उस दुल्हन को बहुत भद्दा बना देते हैं। 3 hours of sheer wastage of money and time. 3 घंटा पैसे की भी बर्बादी और समय की भी बर्बादी। That girl, poor girl, was so beautiful when she used to come to my church. वो लड़की कितनी सुंदर थी जब मेरी कलीसिया में आती थी। And when she comes as a bride to my church to get married, और जब वो दुल्हन की तरह मेरी कलीसिया में आती है शादी के लिए, I hardly can take her face in because she looks so ugly. और मैं शायद ही उसको देख पाता हूँ क्योंकि वो इतनी गंदी दिख रही है। So this is what beauty parlors are doing today. तो आजकल के पार्लर्स यही कर रहे हैं। God is preparing us. परमेश्वर हमें तैयार कर रहा We है। are His bride. हम उसकी दुल्हन हैं। We are not ready to meet Him. We have so many weaknesses. हम तैयार नहीं हैं उससे मिलने के लिए, हमें बहुत सारी कमजोरियां हैं। But He is a perfect makeup man. परंतु वो हमें सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। And God will make us ready for Jesus और Christ. वो हमें तैयार करेगा यीशु मसीह के लिए Through the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, through His saints, उसके संतों के द्वारा, through the fellowship of God's people, उसके पवित्र लोगों की संगति के द्वारा we will be ready to meet Him. हम तैयार हो जाएंगे उससे And मिलने then के we'll लिए। have a perfect confidence. और फिर हमें वो कॉन्फिडेंस होगा And the bride and the Spirit within her say, और आत्मा और दुल्हन कहती है come Lord Jesus. आ यीशु आ, I'm ready. मैं तैयार हूँ I'm ready according to your standards. और मैं आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली तैयार हूँ। Come, let's get married. आओ हम विवाह को करें, Come, let's be together. आओ हम साथ रहें। Jesus is coming again. यीशु फिर से आ रहा है, He is the bridegroom. वो हमारा दुल्हा है, We are the bride. हम उसकी दुल्हन हैं। The best of relationship in this world is taken into as an example to explain us this. और जो सबसे महत्वपूर्ण रिलेशनशिप इस दुनिया का है वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के रूप में है कि हम उससे सीखें। This is going to be much more than a bride and a bridegroom relationship. एक दूल्हे और दुल्हन के बीच के जो रिलेशनशिप होता है उससे भी काफी बढ़कर होगा ये संबंध। You cannot explain this in words. आप इसको शब्दों में नहीं बता सकते Because that relation is not a subject of description by us. क्योंकि वो जो संबंध है वो उसको हम बयान नहीं कर सकते। We don't have words to describe it. हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उसके बारे में बताएं। Let's look
unto the Lord आइए हम परमेश्वर की ओर देखें and surrender ourselves. और अपनी जिंदगियों को उससे सरेंडर करें। I'll take maybe a minute or so taking your response. मैं 1 या 2 मिनट लूंगा, आपसे रिस्पॉन्स चाहूंगा, Because आपसे बातें चाहूंगा। because I'm going deeper, I expect your response so that I get happy that wherever we are going, you are along with me. क्योंकि मैं काफी गहराई में जा रहा हूँ, तो मैं आपसे कुछ बातों को चाहूंगा कि मैं खुश हूँ कि हम काफी गहराई में जाएं। Yes, whatever you learned, your points today. आप बता सकते हैं जो भी कुछ Just आपको 1 सीखना minute, है। not very long. सिर्फ Just 1 मिनट ले लीजिए। when we are hungry and we want to meet our Jesus Christ, there is a beauty within us that we have to cherish. Yes. हमें उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है। हाँ, हमें उसके फुटप्रिंट को फॉलो करना है, उसके पीछे पीछे चलना है। हमें बेवकूफ नहीं बनना है, इनोसेंट बेवकूफ नहीं बनना। मुझे क्या मालूम कहाँ जाना, कैसे जाना, उसने बता दिया। पैरों के निशान देखो, चलना शुरू करो। जिस रास्ते पर पवित्र लोग चल रहे हैं, जिस रास्ते पर सच्ची आराधना होती है, परमेश्वर की स्तुति होती है, वो रास्ता पकड़ लो, तुम मेरे पास तक आ जाओगे। जी, हर बात परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और उनसे पूछ कर हर बात करना। हर बात परमेश्वर के सामने रखना, उससे पूछ कर करना। जहाँ यीशु है वहाँ हमें होना है। जहाँ यीशु है वहाँ हमें होना चाहिए, जहाँ यीशु नहीं है वहाँ अपना टाइम वेस्ट मत करिए।